Good afternoon, students. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Afternoon, sir. Okay. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. So last lecture. Hello. Good afternoon. Last lecture we just started valence bond theory. Okay. So today. क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो. हाँ सर. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है सर. Yes, sir. So see, valence bond theory. Actually, valence bond theory explain both the formation of sigma bond as well as formation of pi bond. So what are the necessary conditions to form a sigma bond? So in order to form a sigma bond, two atomic orbitals overlap with each other. So how these atomic orbitals are overlap with each other? So they are overlap with each other along internuclear axis. Or generally see x-axis we are considered as a internuclear axis. So along this internuclear axis, atomic orbitals overlap. Now this overlap is called as head-on or end-to-end overlap. So for s orbital, see it is given, okay, for s orbital, and for p orbital it is head-on or end-to-end. So whenever there is a formation of sigma bond, end-to-end or head-on overlapping takes place, and these lobes are lying along internuclear axis of orbital. Okay, internuclear axis. Okay, there is a formation of sigma bond. There is a formation of sigma bond. So what about the pi bond? Same condition is there, 2p orbital, but see here how the overlap takes place. Overlapping is sideways. Okay, sideways overlapping is there. So whenever the electron density is along y or z axis, this orbital we consider these orbitals are parallel orbitals. So whenever there are two parallel orbitals, there is not head-on overlapping, there is a sidewise overlapping. Okay, so in this diagram, the side how the orbitals are get sidewise overlap. Okay, it is indicated, see here. Okay, so sidewise overlapping of p orbitals result pi bond. S orbital cannot be formed pi bonds, only see p orbitals, because p orbitals their electron density, okay, is lying along x as well as y as well as z axis. Okay, so these orbitals can form pi bonds. Okay, so see here, ethene molecule, they are giving the ethene molecule. So we know that in ethene molecule, in between the carbon there is double bond. So out of this double bond, one is a sigma bond and other is a pi bond. Okay, so see here, when or how a sigma bond is formed, when each carbons, okay, p orbital, when it overlaps head on or end to end, there is a formation of sigma bond. So this is a sigma bond. So head on overlapping is much stronger than sidewise overlapping. That's why sigma bond is more stronger than pi bond. Okay, so pi bond, see how this is a pi bond where these axes are along y-axis, electron density is along y-axis, so it is a py orbital. Now this py orbital overlaps sidewise. So sidewise overlapping of this py orbital result the formation of pi bond. But see, as a sidewise overlapping is a weak overlapping. So whatever this pi bond is formed, so pi bond is weaker than the sigma bond. Okay,
सबको क्वेश्चन sometimes they ask why sigma bond is stronger than pi bond. So this is the reason. Sigma bond formation, there is a head-on overlapping or end-to-end overlapping. So this overlapping is stronger. Whereas pi bond is formed by sidewise overlapping of py or pz orbitals. So this sidewise overlapping is weak. Okay. So that's why pi bond is weaker than sigma bond. Okay. Now this is important one, potential energy diagram. So exact what happens when two molecules are approaches to each other. We know that atom, you know the structure of atom. So what exactly it contain? Yes, in atom what exact what is the content of atom? Yes, Nucleus. very good. Nucleus and Electrons are there. very, Electrons. very good. Protons, neutrons. Okay, see there are two parts of atom. Central part is nucleus, which is a rigid one, and in nucleus there is a neutrons are there and positively charged protons are there. Overall nucleus is a positively charged. Are you getting me? So this nucleus contains protons and neutrons. Neutrons are neutral, but see protons are positively charged. So overall charge is positive one. Okay, and around this nucleus there is a electrons revolving, and we know that electrons are negatively charged. Okay, so when this atom approaches with each other, see we know that in between positive and positive there is a repulsion. Okay, so when these atoms are approaches with each other, see we are studying this diagram in this direction. Now see position one. So in position one, okay, these atoms are far from each other, so there is no attractive forces exist now. Okay, because they are far away. Okay, so its potential energy is lesser. Its potential energy is lesser. Okay, but as these two atoms are approaches to each other, see at 2. Okay, see the position 2. When they are approaches to each other, they are very much closer now. They are close with each other. Okay, so their potential energy starts to decrease. Okay, but see when it reaches at position 3, this is the maximum overlapping. This is the maximum overlapping where the potential energy is less. So they are approaches to each other, they are overlap to each other, but see at position 3 up to the position 3 the potential energy get decreased. यहाँ पे देखिए ये potential energy है, this potential energies get decreased. Okay, but as this internuclear distance between the two atoms और close आना शुरू हो जाएंगे, suddenly the potential energy increases. So why this is so? Because beyond this distance, when atoms still approaches with each other, still it come closer, then this nuclear attractive forces, okay, that these forces predominate. Okay, these forces predominate, so there is sudden repulsion takes place between this atom. Okay, and atoms get separated. Are you getting me? That's why its potential energy increases suddenly. So this is the position at which, okay, at which the maximum overlap can take place. Beyond this, okay, the repulsive forces get predominate and molecules become unstable and atoms are get separated. Okay, so this energy we called it as a bond energy. This energy is called as a bond energy, and the distance between two nuclei, it is called as a bond length. Everybody understand this concept or any doubt is there? Yes, are you getting this? Yes, sir. Okay, so always keep in mind when atoms are far away, there is no any kind of attraction. When when atoms are get closer, approaches,
when it touch with each other, its potential energies goes on decreasing. So overlapping starts, its potential energy still increases, but at a certain point, okay, at a certain point, when that potential energy is minimum, but suddenly we potential energy increases. But why suddenly this potential energy increases? Because beyond that distance, beyond 75 picometer, okay, still we are going closer, still we are going closer. What happens? The nuclear forces, so within the nucleus or in between the nucleus, the repulsive forces predominate. तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, दूसरे एटम का भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? सडनली न्यूक्लियर फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस प्रेडोमिनेट हो जाएंगे. जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेडोमिनेट होते हैं, ओके, आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और एटम सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो जब तक ये न्यूक्लियर फोर्सेस प्रिडोमिनेट नहीं होते तब तक ये एटम्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे. तो वो जो डिस्टेंस पे वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और वहां पे भी जो एनर्जी एग्जिस्ट होती है वो बॉन्ड की, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. ओके, फॉर हाइड्रोजन सी बॉन्ड एनर्जी इज 435 किलोजूल पर मोल and the bond length is 75 picometer. Okay, so sometimes question is explain, okay, explain potential energy diagram for hydrogen molecules. So these are the 1 2 3 steps we have to discuss this step. So you discuss what is bond energy, what is bond length. Okay, so all it is given in the diagram. So same now, same here. So see here, there are two kinds of forces are exist. Okay, the forces are exist between, see this is Ha means first hydrogen, Hb means second hydrogen atom. So hydrogen atom contains nucleus which is positively charged, and its electron, it is a negatively charged. So attractive forces are exist between one nuclei of hydrogen and इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर न्यूक्लियर और अदर एटम. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से है? ध्यान में रखो, एटम का जो न्यूक्लियस है, एक एटम समझो Ha है, ये एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट है, ध्यान में रखो. ओके, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट है. तो ये सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट है. तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो ये दो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट है. अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन से है? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है. तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, एटम का ये इलेक्ट्रॉन है ए एटम का, और ये बी इलेक्ट्रॉन है बी एटम का. तो इनके बीच क्या रहेगा? निगेटिव निगेटिव है, तो रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे. और जो न्यूक्लियस है ए एटम का और न्यूक्लियस है बी एटम का, इन दोनों के बीच में कौन से फोर्सेस एक्टिवेटेड रहेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस. ओके, तो जब तक ये रिपल्सिव फोर्सेस प्रिडोमिनेट नहीं होते तब तक एटम क्लोज होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं. ओके, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये प्रिडोमिनेंट होते हैं, फिर मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होता है, फिर एटम सेपरेट होते हैं. ओके, तो ये इन्होंने बताया है कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट है, कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस है और कौन से रिपल्सिव फोर्सेस है. ठीक है, तो ये इन्होंने. अब देखो, जो लास्ट लेक्चर मैं जो बता रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स, सी दिस इज पॉजिटिव और दिस इज सेकंड पॉजिटिव, Ca and Cb. Now see Ca, we know that we consider electron as a wave. We consider electron as a wave. Okay, so positive means here phase. Positive, it is considered as a phase. So see, it is a positive. So this is a phase of one wave. This is a phase of other wave. Okay, other atom wave. When they are overlap with
overlap with each other. These waves are actually overlapping. See, the waves are overlapping and these waves come in a same phase. वो वेव जो जुड़ रही है वो सेम फेज में आना चाहिए. तो दोनों वेव जब सेम फेज में आते हैं, ठीक है, वहां पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है और उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों वेव्स क्या आ रहे हैं, सेम फेज में आ रहे हैं. तो ये जो फेज हम डिनोट करते हैं ये पॉजिटिव, सेम फेज में आ रहे हैं तो पॉजिटिव. तो आइदर वो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्ट हो जाएंगे या निगेटिव निगेटिव इंटरैक्ट हो जाएंगे. तो आइदर पॉजिटिव में आने चाहिए वो फेज और दोनों फेज आइदर निगेटिव में आने चाहिए, तब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेज और तभी आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है. ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने पॉजिटिव को उन्होंने कंसिडर किया कि ये पॉजिटिव है, ओके, और ये सेम फेज में आने के लिए उन्होंने पॉजिटिव साइन यूज किया है. तो पॉजिटिव साइन मीन दोनों जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन वेव्स ये सेम फेज में आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो रहे हैं. तो इससे जो ओवरलैपिंग होगा ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा और दैट रिजल्ट बॉन्डिंग, दैट रिजल्ट बॉन्ड फॉर्मेशन और दैट रिजल्ट बॉन्डिंग. तो ये देखो एक एनिमेशन करके उन्होंने दिखाया है कि सेम फेज में आ रहे हैं तो बॉन्डिंग हो जाएगा. हियर सी हियर psi g is there. So anybody know about this notation g? ये क्या notation है g? Yes. G stands for what? Gravity. No, no. Gravity no. It is about the symmetry of the orbital. I think you have studied. See, the G is G-rayed, G-rayed. Do you heard this word G-rayed? Yes or no? Yes, sir. हाँ, G-rayed, G-rayed. In MOT में आपने स्टडी किया है ये G-rayed. So what is a G-rayed concept? See here. See, this orbital is totally symmetric. Okay. So when resultant orbital form, okay, that is symmetric. When that orbital is symmetric, then that orbital we referred as a G-rayed orbital. Okay. तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है यहाँ पे, ओके, ये एकदम सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा. देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से एक्सिस पास करोगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एकदम सिमेट्रिक है. तो यहाँ पे सिमेट्रिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है. तो सिमेट्रिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको psi g से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. ध्यान में रखो. ओके, तो ये g स्टैंड्स फॉर G-rayed है. ओके, तो वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, दे आर कमिंग इन सेम फेज. पॉजिटिव है, सेम फेज हो जाएगा. सेम फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये G-rayed का कंसेप्ट आपको बताया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव्स अपोजिट फेज में आ रहे हैं. वेव्स क्या आ रहे हैं, अपोजिट फेज में आ रहे हैं. देखो ये वेव्स अपोजिट फेज में आ रहे हैं. एक एटम का वेव पॉजिटिव है, दूसरा एटम का वेव नेगेटिव है. ओके, तो ये एकदम अपोजिटली फेज में आ रहे हैं. जब अपोजिटली फेज में आते हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं. वेव्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. तो वेव जब एक दूसरे से कैंसिल होते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, इट फॉर्म इन MOT, इन द फॉर्म ऑफ MOT इट इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग. अब ये देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव फेज है, यहाँ पे निगेटिव है. यहाँ पे देखो दोनों साइड पॉजिटिव था, इसलिए सिमेट्रिक है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये जो लोब है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये लोब है ये निगेटिव है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक. इसलिए यहाँ पे एक नोड आया है. देखो इसको नोड बोलते हैं. ओके, और नोडल प्लेन भी बोलते हैं. तो ये सिमेट्रिक नहीं है. आपको सिमेट्रिक दिख रहा है
लेकिन अगर आप उसका वेव्स कंसीडर करते हो तो एक आ रहा है पॉजिटिव, मीन्स एक आ रहा है एक फेज से, दूसरा आ रहा है दूसरे फेज से, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे दोनों भी सेम फेज में आ रहे हैं इसलिए सिमेट्रिक है। यहाँ अपोजिट फेज आ रहे हैं इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है, वो अनजीरेड रहते हैं। ओके, वो क्या रहते हैं? अनजीरेड रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए साई यू से इसको डिनोट किया है। और यहाँ अपोजिट आ रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे है, देखो, क्योंकि अपोजिट फेज से आ रहे हैं, दोनों के वेव्स अपोजिट फेज से आ रहे हैं। तो दोनों एटम के वेव जब अपोजिट फेज से आते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डज नॉट रिजल्ट इनटू एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अनस्टेबल द मॉलिक्यूल। ते एमसीची फॅकल्टी निनाद सर, काय करणार आहे? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? आपको सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes. Sir. समझ में आया ये? ओके। कुछ डाउट है तो पूछो, हाँ, बीच में अगर कुछ डाउट आ रहा है ना। ओके। सर उसमें एक लाइन लिखी थी, एनर्जी ऑफ द ईएन इन दिस ऑर्बिटल इज हायर। Oh, first, last slide, sir. What is that? हाँ, ईएन किसके लिए स्टैंड करता है इसमें? कौन सा? The last slide which you have shown us, no? That one. दिस वन? Destructive, this one, sir. Destructive interference. हाँ, सी एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल। ओके, देखो, जब भी, हमेशा ध्यान में रखो, मैंने क्या बोला था आपको, जब भी अपोजिटली चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज आता है, जब अपोजिटली फेज आते हैं ना, तब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। सेम फेज में आता है पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिखाया, देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन जैसे ये रिपल्सिव फोर्स मीन्स अपोजिट फेज में आ जाएंगे, वेव जब अपोजिट फेज में आएंगे तो एनर्जी बढ़ता है। फिर बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लो रहता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी हाई रहता है। समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा, हेलो अदर स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कौन है बात कर रहा है? ऑल ऑफ यू जस्ट हेलो स्टूडेंट्स, म्यूट योर सेल्फ। हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी। In destructive interference, that means the energy is high, no? So that's the reason the bond. Yeah. In destructive interference, see the phases of the waves are opposite. Okay, as the phases are opposite, there is a formation of anti-bonding orbital, and anti-bonding orbitals का एनर्जी हाई रहता है। ठीक है, तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ध्यान में रखिए, एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल इज हायर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे? हायर रहेंगे। जैसे आप एमओटी में आपने स्टडी की है ना, एमओटी में देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम नीचे ड्रॉ करते हैं और एंटी बॉन्डिंग, एक मिनट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखो ये समझो, यहाँ पे ड्रॉ करने में ये करना पड़ेगा ना, व्हाइट बोर्ड में आपको पता है क्या कैसे, अभी ये पेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट से करेंगे क्या? यहाँ पे तो ये
आप थोड़ा फिर से ये कर लीजिए, लॉग इन कीजिए जब ये खत्म हो जाएगा ना। Okay, sir. So there are different options of pens over there. You just have to go and select on that pen ka option. Where that option? So otherwise directly annotate kar lo on the diagram itself. ठीक है, जब मैं एमओटी रहता है ना, तो ये देखो कैसा होता है, वो बॉन्डिंग रहता है, वो ऑर्बिटल नीचे आते हैं। ये समझो एटम है, दोनों एटम है, बॉन्डिंग रहेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा। ये है कंसेप्ट इसका, ठीक है। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे ये बॉन्डिंग है समझो, तो ये नीचे आएंगे, एंटी बॉन्डिंग है तो एनर्जी इसका ऊपर जाएगा। ऐसा रहता है डायग्राम। What are you showing? We can't see anything. अब ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आपको? There is a blank screen only, a whiteboard. There is nothing else. अभी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है अभी? हेलो? No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. ओके Screen sharing is on now. ओके। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो बोला है ना, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज हायर, तो हमेशा ध्यान में रखो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें एनर्जी हाई होती है, कंस्ट्रक्टिव जब होते हैं तो एनर्जी लो होती है। क्यों लो होती है? कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जब रिलीज होगी तो डेफिनेटली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी है वो लेस रहेगी। एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सिव फोर्स प्रिडोमिनेंट होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स प्रिडोमिनेंट होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई रहती है। ओके, इसलिए सी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल है, ये तो हाइड्रोजन का एग्जांपल हो गया। अब He2 हेलियम, तो देखो हेलियम, व्हाई हेलियम डज नॉट एग्जिस्ट, हेलियम मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, यहाँ पे देखिए हेलियम में कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट हो रहे हैं। हेलियम, आपको पता है हेलियम में इन देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो एज देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, द positive charges on nucleus is 2 positive charges because there is 2 protons exist. Okay, so if you see all these repulsive forces, okay, these are the attractive forces and these are the repulsive forces. So attractive forces are exist, so there are 2 positive charges and other atom having 2 electrons, so these are the attractive forces. So second, if you see second atom having also 2 positive charge and first atom A having its 2 electron, so these forces are exist, these are the attractive forces are exist. Okay, अब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस कौन रहेंगे? देखो वहां पे 2 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लिया है, इन बिटवीन देम देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस प्रेडोमिनेंट ज्यादा हो रहे हैं देन अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब भी ये ओवरलैपिंग होगा, ये दिस ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीजिंग एनर्जी।
तो जितनी ज्यादा इंक्रीजिंग एनर्जी है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन जो देना है, तो आपको यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस को प्रिडोमिनेंट करना है। रिपल्सिव फोर्सेस आर प्रिडोमिनेंट देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, दैट्स वाई जो हेलियम मॉलिक्यूल है इट डज नॉट एग्जिस्ट, हेलियम मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिथियम का बेरिलियम का दिया है, जैसे हेलियम का है वैसे ही बेरिलियम का है, तो बेरिलियम में भी सेम होता है। ठीक है, फिर बोरॉन का दिया है, कार्बन का दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सब आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का तो समझ में आया ना, वैसे ही लिथियम का है। लिथियम में देखो टोटल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फर्स्ट ऑर्बिटल में रहेंगे 1s2, और सेकेंड ऑर्बिटल में रहेंगे 2s1। तो बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाला है वो 2s होने वाला है, 2s ऑर्बिटल। सो दिस इज अ 2s ऑर्बिटल ऑफ एटम A, दिस इज अ 2s ऑर्बिटल ऑफ एटम B। दिस 2 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विथ ईच अदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिलियम में देखो, बेरिलियम में क्या हो रहा है 1s2 2s2, 2s2 ऑर्बिटल ये फुल्ली फील्ड है, यहाँ पे टोटल फील्ड है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, प्रेडोमिनेंट होते हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस प्रेडोमिनेंट होंगे तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं तो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों पेयर्ड है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है। repulsive forces are exist between the nuclei as well as the repulsive forces exist between these electrons. So as there is a repulsive forces is predominant, there is a no overlapping, तो इसमें overlapping नहीं होगा, इसलिए Be2 molecule does not exist। लिथियम molecule exist हो जाएगा, हाइड्रोजन exist हो जाएगा, लेकिन हेलियम और ये बेरिलियम इसका मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगा। बोरॉन में देखो, बोरॉन में क्या है 2s2 2p1, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में। ओके, तो ऐसे दो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो ये 2p1, तो ये p1 ऑर्बिटल्स आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो ओवरलैप होंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैप होंगे और एंड टू एंड ओवरलैप होंगे, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, और ये अपोजिट फेज में आएंगे। देखो यहाँ पे अपोजिट फेज में कैसे आ रहे हैं, तो ये देखो इसका ये छोटा लोब है, ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट फेज में आ गए तो क्या हो जाएगा, ये रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो वहां पे नोड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। स्टार मीन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर फॉर्म होगा। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, जो लो मोलिकुलर ऑर्बिटल रहता है उसमें पेयर अप हो जाएंगे, तो लो मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका कौन सा है, सिग्मा है, तो इसलिए दोनों ऑर्बिटल्स क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो ये B2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे B2 मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे देखो एक रहेगा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक वाई आ रहा है, तो जब एक्स एक्सिस ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जब ये वाई ओवरलैप हो जाएंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा इनका, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा तो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ 2 बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। ओके, बट कार्बन आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4,